Hello students, we have completed till practice set 1.2. Today we will start practice set 1.3. Okay. Before proceeding practice set 1.3, let's recap some concept. In starting, we learned about sets. Sets is a collection of well-defined objects. Okay. For writing sets, there are two methods in mathematics. First one was roster form and second one was rule method. Okay, in practice set 1.3 we will learn something different. Okay, let's start practice set 1.3. Here before starting practice at 1.3, let's learn some basic concept. Okay, we represented sets into two form. First one is roster form and second one is rule method. Okay, and in both that form we used curly brackets. Okay, but there was a mathematician whose name was John Venn. Okay, John Venn told us that sets can be represented easily without that curly bracket. Means that they gave another idea for representation of sets. Means that they told us to represent set in a figure. Okay, so he gave us idea for representation of sets into figure. What was that figure? That was geometrical figure. Means that the circle, rectangle, square, triangle, in that figure set can be represented and it can be easily understood. Okay, this idea was given by the John Venn. Okay, so let's consider here set A. Set A contains elements, for example any of the 1 2 3 4 and 5. Okay, so here we have written that the in set A is in roster form. If we have to write in set builder form, then how will we write? Here as we are looking that these all are the complete numbers, so we will write as the A is a set of x such that x belongs to natural number. Okay, it is a looking complete number, so here we wrote that the x belongs to natural number, and here we have some limitation. Means that the here we have given some range, so here we will write that the n, so x is less than equal to 5. Okay, in rule method we will like in this manner. John Venn told us to represent in the figure. So here we can consider any of the figure, any of the geometrical figure, whether it would be square, circle, rectangle. Mostly we consider four figures. Okay, what are they? First one is square. Okay, after that rectangle. In quadrilateral we consider two figure. First one is square and another is rectangle, and after that the third one is square, third one is circle, and fourth one is oval. Okay, so by this four figure we will represent the whole sets. Okay, normally we use this four figure. So here if we have to represent set A, so we can draw any of the figure. Okay, so here we will name here A. Okay, set A. Okay, set A, how many elements are there? 1 2 3 4 5. So we will place 1 2 3 4 and 5. Okay, here we can like in that manner we have to place here elements also. Element 1, element 2, element 3, element 4 and element 5. Here same also, here element 1, element 2, element 3, element 4, element 5. Okay, so this concept was given by the John Venn. Understood everyone? After that there is another concept come, which is subset and universal set. Let's first learn what is meant by subset. Okay, consider here we have given set A and I am considering here another set which is B. Okay, A contains element 1 to 5 and I am considering in set B element 1 and 2. Okay, and another set C which contains only one element, that is 4. Okay, so here subset means that would be the sub of that set. मीन्स दैट दी, अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे सबसेट का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी सेट हम लोग बोलते हैं कि किसी भी सेट का सबसेट है,
फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव गिवन 3 सेट्स ए बी एंड सी। अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो सेट बी है ए का सबसेट है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट ए के अंदर रिफ्लेक्स होने चाहिए, मतलब कि दिखने चाहिए। ओके, फॉर बीइंग अ सबसेट ऑफ एनी सेट, that set should be carries that elements which are going to be replaced in that set or whose that set is a subset. Understood everyone? अगर यहाँ पे हम लोग ने कंसिडर किया कि सेट बी सेट ए का सबसेट है, तो यहाँ पे सेट बी के पास जितने भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट सेट ए के अंदर होने चाहिए, तभी वो उसका सबसेट होगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं बी अगर हम सबसेट को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे उसको नोटेशन देते हैं by this sign. Okay, this sign is called as the subset. Okay, जो क्लोज्ड है, जहाँ पे क्लोज्ड एरिया है वहाँ पे हम लोग किसको पुट करते हैं, जो सबसेट होता है, और जहाँ पे ओपन एरिया है वहाँ पे हम लोग जो सुपर सेट होता है उसको वहाँ पे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर पूछा गया हम लोग को कि बी ए का सबसेट है कि नहीं, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, कैसे रीड करेंगे इसको, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, सो हियर वी हैव गिवन दैट द सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इट मींस क्या होना चाहिए यहाँ पे कि जो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो कहाँ पे रिफ्लेक्स होने चाहिए, सेट ए के अंदर। ओके, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1, 2। ओके, 2 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर दे 1 and 2, and in set A there are 1 and 2. Okay, yes, we are able to see here that the set A contains एलिमेंट्स 1 एंड एलिमेंट्स 2। तो सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है, तो सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो कहाँ पे रिफ्लेक्स हो रहे हैं, सेट ए के अंदर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेट बी क्या हो गया, सेट ए का सबसेट हो गया। ओके, अभी यहाँ पे अगर ऐसा पूछा जाए कि हाउ, फर्स्टली टेल मी हाउ विल वी रीड एस, हाउ विल वी रीड इट, वी विल रीड एस ए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट सी। मीन्स दैट दी यहाँ पे सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो कहाँ पे रिफ्लेक्स होने चाहिए, सेट सी के अंदर होने चाहिए। यहाँ पे देखो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और सेट सी के अंदर क्या केवल एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, व्हाट आर दिस, दिस इज 4। ओके, सो सेट ए के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट है जो सी के अंदर नहीं है, 1 2 3 and 5। तो जिसकी वजह से जो हमारा कंडीशन है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे सी इज अ सबसेट ऑफ ए। अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? After that the another concept comes, that is universal set. यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या होता है कि जो सबसे बड़ा सेट होता है। अगर किसी भी एक कंडीशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। अभी हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी बस गिवन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सेट कौन सा दिख रहा है, सेट सी बड़ा दिख रहा है क्या, नहीं। सेट बी बड़ा दिख रहा है, नहीं। कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है, सेट ए। तो यहाँ पे सेट ए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या होता है, इट इज द बिगेस्ट सेट अमॉन्ग द होल सेट्स। ओके, एट विच कंडीशन वी आर कंसीडरिंग। ओके, जिस कंडीशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उस कंडीशन में जो सबसे बड़ा सेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अंडरस्टूड एवरीवन? Okay, we have completed the concept which are going to be come in practice at 1.3. Let's start practice at 1.3. So in practice at 1.3, look at the question number 1. What is given here? If A is equal to A, means that the A is a set of A, B, C, D, E. Okay, यहाँ पे A के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। What are this? और A B C D E, एंड B के अंदर 4 एलिमेंट्स है। what are these? C D E F, एंड C के अंदर 2 एलिमेंट्स B and D। D के अंदर कितने एलिमेंट्स है, A and E। Here we have given 4 sets, okay, 4 different sets which carries different number of elements and different element। अब वहाँ पे अपने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। यहाँ पे हम लोग को 6 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके अंदर हम लोग को मतलब कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स है, इसको देखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे क्या है, सी यू बी, हाउ विल वी रीड इज, वी विल रीड इट बाय सेट सी इज अ सेट ऑफ सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, कैसे रीड करते हैं इसको, सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, चलो चेक करते हैं यहाँ पे। हम लोग ने जैसे देखा कि किसी भी
सेट को सबसेट होने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, उसके एलिमेंट को रिफ्लेक्स होना जरूरी है। ओके, तो सेट सी के अंदर देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है सेट सी के अंदर, बी एंड डी। तो ये किसका सबसेट यहाँ पे पूछा गया है, बी का। तो बी के अंदर चेक करते हैं बी और डी है क्या। ओके, सबसे पहले बी के लिए चेक करते हैं। बी दिख रहा है इसके अंदर, नहीं दिख रहा है। डी दिख रहा है, डी दिख रहा है, लेकिन बी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अगर किसी भी सेट को सबसेट होना है तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए कि ऑल द एलिमेंट्स शुड बी रिफ्लेक्स इन दैट ऑफ द सेट। ओके, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट रिफ्लेक्स नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में, एलिमेंट बी इन सेट सी। जो सेट सी के अंदर एलिमेंट बी है वो सेट बी के अंदर रिफ्लेक्स नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट बी इन सेट सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके, तो अभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये सबसेट होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, सेट सी इज नॉट a subset of set B. Understood everyone? Let's move on. Second question, what is given here? Set A is a subset of set D. Again check. सेट ए को किसका सबसेट बताया जा रहा है, डी का बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 5 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई। और सेट डी के अंदर कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ए और ई। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट सेट ए के सेट डी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ए दिख रहा है क्या, यस ए दिख रहा है। बी दिख रहा है, नो बी नहीं दिख रहा है डी में। सी दिख रहा है, नो। डी दिख रहा है, नो। ई दिख रहा है, यस। तो कौन कौन से एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, बी सी डी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर में एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट्स बी कॉमा सी कॉमा डी ऑफ सेट ए आर नॉट एलिमेंट ऑफ सेट डी। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, सेट ए इज नॉट अ subset of set D. Understood everyone? Okay, let's move on. Third question, what is given here? D is a subset of B. Okay, here we have given D is a subset of B. Let's check. D के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, A। तो A है क्या इसके अंदर, नो। E है क्या, है, लेकिन A नहीं है। तो अभी वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं था यहाँ पे, A। एलिमेंट ए इन सेट ए और सेट डी इज नॉट इन सेट बी। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेट डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, I am doing here 4 questions. You have to do all the questions. Okay, there are 6 questions and you have to do it twice. Okay, let's move on. Last question, what is given here? C is a subset of A. Here we have given C is a subset of A. Let's check whether it is or not. Okay, here C contains elements B and D. Let's check that set A carries B or D or not. First check for B. B carries, yes, set A carries B, and D, yes, set A also carries D. So here we will write that all the element of set C is an element of set A. Okay, here all the elements of set C are reflecting in the set A. Okay, so here we will write statement that set C is a subset of set A. Understood everyone? Okay, here we have done 4 questions and you have to do all the 6 questions twice. Okay, if you are not understanding any of the concept,
revise the video again and again. Okay, by this you will learn all the concept, and your doubts will be clear. Okay, which we have done today, all the concept with along with this question you have to do twice. Okay, thanks for today.